السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج ہم پریس کلب آئے ہیں اور پریس کلب کا ہم نے وزٹ کیا۔ پریس کلب میں کیا ہوا اور کس وجہ سے ہم آئے تھے ہم وہ آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ آپ سب کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ آج اسٹوڈنٹ آپ کے لیے عموماً تو آپ شیٹ دیتے لوگوں کو، اسٹوڈنٹ آپ کے لیے شیٹ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماشاء اللہ 11ویں مرتبہ اتنی عام بات نہیں ہے کہ جرنلسٹ کا اعتماد حاصل کرنا، اور ایک جرنلسٹ انہیں میں وہ کا اعتماد حاصل کرے پریزنٹ بنے تو لاہور کی تاریخ کی ریکارڈ ہے، اور پاکستان میں بھی اتنا، اور پھر ان کی ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منتخب ہو، اچھا نہ بھی ہوں تب بھی کام کرتے ہیں صحافیوں کے لیے۔ اور ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ارشد صاحب ہمیشہ ویڈیو بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ میں سے، بات بھی سنتے ہیں، فون بھی سنتے ہیں اور اس کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ تو یہ جی سرور صاحب اور یہ آپ کو شیٹ پیش کریں گے سر صاحب، یہ آپ کو ایکٹیویٹیز ہمارے یہاں پر ایک بڑا ہمارا اپنا ایک ریکارڈ رہا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ارشد انصاری صاحب، ایک بڑا ریکارڈ ہمارا رہا کہ پاکستان میں جب بھی جمہوریت کی بات ہوئی لاہور پریس کلب بیکیم دی سینٹر، جہاں پر آ کے بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پر آ کے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا۔ اور صاحب وہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ اس کو آپ ایک پروفیشن نہیں بلکہ ایک پیشن کے طور پر لیں، اور آپ کو اس میں بالکل اپنے آپ کو انوالو کر کے یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ ایکسپینڈ ہوا ہے، جتنے بڑی تعداد میں پہلے گریجویٹس ہوتے تھے آپ کی جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے، اب اس سے کہیں زیادہ مختلف یونیورسٹیز جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہیں، اور انہی لوگوں نے آگے جا کر اس پروفیشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پوری اپنی آپ کے والدین آپ جس طرح سے بھیجتے ہیں یونیورسٹیز میں، آپ پوری طرح سے اس میں انوالو ہو کر آپ اپنی تعلیم حاصل کریں۔ دوسری بات جو میں یہ کہوں کہ جو تھیوریٹیکلی جو آپ پڑھتے ہیں اور اس کے برابر میں اس کے مقابلے میں جو پریکٹیکلی جو جرنلزم ہے اس میں ایک فرق بھی آپ کو نظر آئے گا جب آپ آئیں گے اپنا پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دم سے ایک جو شفٹ آئے گا جس میں آپ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا تو اس طرح سے نہیں ہوا تھا، جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے پریکٹیکلی کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں شبیر صاحب سے بھی کہوں گا کہ جو ٹائم ٹو ٹائم کی جو انٹریکشنز ہیں ان کو آپ پڑھائیں۔ ہماری بھی بیٹھتے نہیں ہیں، چونکہ لاہور ذہب آف جرنل یہ صحافت کا ایک کہلوانا ہے۔ لاہور کو کہا جاتا ہے نا صحافت اور تعلیم، اور یہ اس کا کہلوانا ہے پورا۔ ہماری ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بولتے ہیں ہماری آواز جو ہے وہ پورے ملک کے ایک کونے میں چلی جاتی ہے۔ سر آپ بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں جس ڈپارٹمنٹ سے میں نے بھی پڑھا تھا، تب تو یہ MMS فارم نہیں ہوتا تھا یا اسکول آف اسٹڈیز نہیں ہوتا تھا، اتنی ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی، لیکن جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ ہیں، پہلی کلاس ہماری اس ڈپارٹمنٹ میں میری پہلی کلاس ہم گھر سے الحمدللہ۔ اگر ہم یہ کہیں تو آپ دیکھیں ٹی وی اور کرتے ہیں اخبارات، آپ کالمسٹ کو دیکھیں، اخبارات کو دیکھیں، آپ ٹی وی اینکرز کو دیکھیں، تو ساری میس کام سے تقریباً 80% آپ کو لوگ ادھر کے لوگ ملیں گے، سارے وہیں سے یہ لوگ ہیں۔ تو اگر 80% پہ 70-80% پہ میس کام کے جو ہے وہ میڈیا جو ہے میڈیا پہ جو پورا قبضہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، تو ہم پڑھتے نہیں تھے کتاب ہوتا، کتاب کا پڑھنا بڑا ضروری ہے، لائبریری میں بیٹھ کے گھنٹہ ڈیڑھ لگانا اچھا بہت ضروری ہے۔ میری آپ کی ایڈوائز ہے کہ کتاب پڑھیں، یہ اس کے علاوہ نہیں، یہ وہ پڑھیں نہیں وہ آپ اپنے میس کام کی کتابوں کو پڑھ لیں اور اپنے ذہن میں، اس کے علاوہ دنیا کو نکال کے آیا کتاب جس کو شوق ہے، شوق پیدا کرنے پڑھنے کا، اخبارات کو پڑھنے کا، رسائل کو، جرائد کو پڑھنے کا، اس سے نہ تو صرف گہرائی بڑھے گی
करंट अफेयर है क्या, दुनिया कैसे चल रही है, जिसको जो शौक है वो जरूर करें। शौक बड़ी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बड़ी देर हो गई आपने यहाँ, तो शकील साहब मैं कहूँगा कि किसी स्टूडेंट ने कुछ सवाल भी करना है, सारी कैबिनेट बैठी है, तो थैंक यू वेरी मच आप। और विश के आप सारे अलहमदुलिल्लाह के अच्छी अच्छी जगहों पे हो, तो कल तो हमें भी अपने साथ में शुरू करें, तो इंशाल्लाह ये थैंक यू सो मच सब क्या शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारे पास का बाकी जो अर्शद साहिब ने बातें बताई हैं, इससे आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन इसमें स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर इस पे होने की कम्युनिकेशन गैप खत्म करें, जैसे कॉन्फ्रेंस आती है आप लोग आएँ और यहाँ पे अटेंड करें। तो पे जर्नलिज्म में जब एंटर होते हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स जो होते हैं तो उनको सैलरीज वगैरह नहीं दी जाती, ये सब इश्यूज फेस करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई फ्रेश जर्नलिस्ट है वो ज्वाइन करता है प्रेस क्लब को, तो ये उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उसे कैसे असिस्टेंस दी जाएगी? मैं भी इसमें बात यह है कि जब आप स्टूडेंट्स जब आते हैं ना इंटेंसिव के लिए, आपका पहला तो क्वेश्चन ये है ना कि उनको सैलरी, लेकिन ये एक चूँकि यूनिवर्सिटी वाले भेजते हैं 1 माह के लिए या 2 माह के लिए, 2 माह के लिए, तो वहाँ से मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टूडेंट्स बड़े ब्राइट होते हैं तो उनको वो इधर नौकरी कर लेते हैं, एक तरह डायरेक्ट ही आपको नौकरी मिल जाती है। दूसरी आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि 2 माह के लिए आप आएँ और आपसे काम कराया जाए, आप आ रही हैं कन्वीनियंस आपके पास, आप ऊबर में आ रही हैं जा रहे हैं, तो आपको पैसे लगते हैं। तो इदारों को चाहिए कि इंटेंसिव जो है उस पर कोई स्टाइपेंड जो है वो स्टाइपेंड देना चाहिए, ताकि वो जो आ रहे हैं उसका अपना पेट्रोल खाना वो तो इक्वल हो जाए, और अगर अच्छा काम करने तो चले जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अब तो हमें इदारों में तनख्वाहें बड़ी कम मिलती हैं, लेकिन दूसरी बात अगर आपने आना तो उस पर ज़ाहिर है आपके आने जाने के अखराजात भी होते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन ये अच्छी आपकी बात है। दूसरे प्रेस क्लब की आपने बात की, तो देखिए हमारा जो है ना आइन उस पर प्रेस क्लब की जो मेम्बरशिप का एक क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया जो है अब तो हमने थोड़ा चेंज भी किया, हमने अपने आइन में कोई अमेंडमेंट्स भी किए हैं। उसमें यह है कि जो कम अज़ कम तो ग्रेजुएशन है उसकी लेगी और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो A क्लास जो जिस हमारे आइन में लिखा है कि जो अखबार स्टॉल वैल्यू जो बिक रहा स्टॉल पे, वो अब चूँकि TV आ गए, तो वो TV जो टॉप के TV उनमें कम से कम 5 साल का दैन वो एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ ब्लॉक प्रेस। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड जाती है इस तरह के इदारों में, सपोज हमें DGPR में भी इंटर्नशिप प्रोवाइड जाती है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं लाया जा सकता कि हमें प्रेस क्लब के अंदर भी इंटर्नशिप प्रोवाइड जाए, हम यहाँ पे आए, इस छत के अंदर हमें वो लोग मिलते हैं जो एक मीडिया हाउस के अंदर भी नहीं मिलते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी लोग होते हैं, प्रिंट से भी होते हैं, फोटो जर्नलिज्म से भी होते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़े नाम, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे 100 साल भी पढ़ लें वो उतना इलम हासिल ना कर सके जितना हम इस प्रेस क्लब के इस छत के नीचे हमें मिलेगा इलम, तो क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म आएगा हमारे? देखिए हम ये तैयार हैं क्योंकि आपके जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि उसने एक बड़े इदारे में आपको रेफर करना है या DGPR में करना है, जहाँ पे कोई PR का काम हो रहा है, जहाँ पे प्रैक्टिकल जर्नलिज्म हो रही है, यहाँ पे प्रैक्टिकल जर्नलिज्म भी होती है। यहाँ ये तो क्लब है ना, लेकिन अगर ये समझते हैं कि आप क्योंकि यहाँ से लोग यहाँ पे आपको हर सेगमेंट में वाकई लोग मिलते हैं, यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर भी मिलेगा, एंकर भी मिलेगा, आपको फोटो जर्नलिस्ट भी मिलेगा, आपको कैमरा मैन भी मिलेगा, आपको रिपोर्टर भी मिलेगा, हर तरह से लोग बैठे होते हैं। लेकिन ये एक इदारा लाहौर प्रेस क्लब इदारा ज़रूर है, लेकिन उस तरह की रिक्वायरमेंट ये मीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लाहौर प्रेस क्लब में भी ये लोग आएँ, तो फिर हमारे हम क्योंकि एक ड्यूटी असाइन नहीं कर सकते, मैंने आपको ड्यूटी यहाँ ड्यूटी साइन नहीं होती, ये क्लब में बैठने के लिए आ रहे हैं या जर्नलिस्ट आ रहे हैं, ये यहाँ एक्टिविटी होती है, आप एक्टिविटी ज़रूर देखें। और अगर ये शबीर साहब चाहेंगे तो हमें लेटर लिख दिया करें, आप एक्टिविटीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए आप आएँ, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे साथ कि उसने यहाँ से हमारे एक आजूर जाए। मैं सब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग यहाँ पर जर्नलिज्म तो क्लब में जाए, ये तो क्लब है, ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए है या आपस में गपशप के लिए है, ये एक डिफरेंट माहौल है। तो ये आप अपने डिपार्टमेंट में ये ज़रूर, हम भी अपने डिपार्टमेंट में बैठे हैं, मैंने
स्टूडेंट आए तो यहाँ बैठे हैं, सीनियर से बात भी करें, मिले भी, जैसे की महफिलों में भी बैठे, क्योंकि उसमें बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे बैकग्राउंड ऐसा वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो फिटनेस करते हैं चीज़ों फलां वक्त ये हुआ, ये था। मैं सदर साहब से अगर आप इस तरह के वाक़यात सुनना शुरू करें ये पूरी किताब लिखी जा सकती है उसके ऊपर के ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, वो आप देखिए उनमें आप यहाँ पे टाइम गुजारें, लेकिन ये डिपार्टमेंट से कहें वो कर लें, आप उसको इसका स्पैन छोटा रखें, ये हफ्ते का रखें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, आप बैचेस बना के उसमें कोई इशू नहीं। मैं इस पर थोड़ा सा जैसे सदर साहब ने भी कहा, असल में जो बच्चे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल लाहौर न्यूज़ में रिपोर्टिंग करें या किसी चैनल में, तो फिर आप रिपोर्टिंग जब करते हैं तो यहाँ आते हैं उधर से एज रिपोर्टर, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो दूसरा मशवरा है वो भी ठीक है कि हम मतलब 15 दिन के लिए अलॉट करते हैं एक नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इसमें ऐड ऑन और वो आप लोग फिर यहाँ आएंगे और उन एक्टिविटीज़ को विटनेस करेंगे और उसको ऑब्जर्व करने से आप बहुत कुछ लर्न करेंगे, सोशलाइजेशन, लिंकेज वगैरह भी इसको हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे सर अपनी फैकल्टी मैडम से करें। जी जी अच्छा साहब, आपके आने से कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था, वो ये था कि क्योंकि उससे पहले प्रिंट मीडिया में और रेडियो से वाबस्ता लोग प्रेस क्लब के मेंबर होते थे, फिर जब आपने आइन में तब्दीली की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मेंबरशिप दी, मुख्तलिफ पोजीशंस पे दी, तो ये जो सोशल मीडिया नहीं है, जो डिजिटल मीडिया है, क्या फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान नहीं है आपका कि डिजिटल मीडिया वालों को जो कोई आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं उसके तहत उनको भी कोई मेंबरशिप उनके लिए अनाउंस करें? देखिए बात पता क्या है, बात यह है कि हमने हमारे जो आइन था ना, उसमें हम आइन सिर्फ हमारा ये था कि वो लिखा गया होगा, पता नहीं साल पहले जब ये क्लब आया, सैयद नकी साहब आइए, रहमान साहब बड़े नाम बड़े, ये लोग उस आइन का हिस्सा थे, बल्कि डॉक्टर मेहदी साहब भी सेवेंटीज़ की बात है, ये इनका हिस्सा थे। तो जब लिखा गया तो 70 में कोई PTV के अलावा तो कोई चैनल नहीं था, तो PTV चूँकि हम PTV हमारे PTV वाले हमारे मेम्बर इसलिए नहीं थे कि वो सरकारी लोग हैं, सरकारी जो सरकारी बंदा जिस प्रोफेशन से है वो LPC का मेंबर नहीं थे। तो हमने चूँकि एकदम आया मीडिया लो किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, तो फिर हमने आपके सामने 2012 में हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑन किया। उसमें ज़्यादा वो लोग थे जो प्रिंट से शिफ्ट हो गए थे, वो लोग थे। लेकिन ये जो अब डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, ये हर बंदे ने तो अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, ये सारे अपने घर में जाकर खोल रहे हैं। मसला ये डिजिटल मीडिया के लिए हमें एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज करनी होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी प्रेस क्लब के लिए कि वो डिजिटल मीडिया को मेंबरशिप दे। डिजिटल मीडिया के लिए पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मोहसिन साहब, मेरा ख्याल है कि आप जिस हमें उठा लें, हमारे अपने चैनल चल रहे हैं, लेकिन वो ना तो वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये जो अपने यूट्यूब चल रहे हैं, इस पर इनकी मेम्बरशिप के ये ऐसे हो ही नहीं सकते। कैसे ये मेंबर, अगर ये इनको मेंबर बना लें तो फिर हम बाहर हो गए वोटर हो गए, यहाँ से तो 40,000 होगा। देखिए सबसे पहले तो मुबारकबाद की काफ़ी की हालत बहुत बेहतर नज़र आ रही है। सेकेंड ये सर आपकी जो इलेक्टेड बॉडी है पेश बोर्ड जैसे कानून को लेके या इस तरह के जो कानून जिससे हमारी जो साथी बरादरी है, आपकी साथी बरादरी है, इसके हालात बेहतर हो सकते हैं। आपकी सर क्या हिकमत अमली है ऐसे कवानीन का, उनकी आवाज़ उनके लिए राइट्स पर बात करनी है? देखें उसके लिए जो राइट प्लेटफॉर्म है, ये सोशल एक्टिविटी जो राइट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान फेडरल PFUJ, उसके लिए प्लेटफॉर्म है PUJ। हमारे यहाँ से अब तो आप ऐसा बैठे थे, वो यहाँ भी बैठे थे जा सकते। तो उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है ना वो यूनियन है, वर्ल्ड बॉडीज एक्चुअली वो अभी हमने आज से 4-5 दिन पहले यहाँ पे किसी हुई है और उसको हम कहते हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो पूरे पाकिस्तान से कुछ 150 लोग हैं, पूरे आप से भी और बलूचिस्तान से भी, KP से, AJ के, DB से, यहाँ ये 3 इधर इसी बात में। तो एक्चुअली ये उनकी लड़ाई है। हम उनके लिए तमाम जो क्लब है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक क्लब भी खड़ा है, लॉर्ड प्रेस क्लब भी खड़ा है, PUJ भी खड़ी है, तो हम पीछे PUJ PFUJ खड़े हैं। ये एक्चुअली इस्लामाबाद का काम है, फेडरल का काम है, लेकिन हम सपोर्टिंग के लिए जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि BM हम सर या जज हम भी साथ हैं, वो भी साथ हैं। लेकिन ये वेज बोर्ड अवार्ड और ये लेना, ये तनख्वाहों का मामला, लेकिन मैं बैठा, मैंने 2003 में सर्व करा,
ये मैं कंपनी में चढ़ गई गवर्नमेंट में, अलहमदिल्ला आज 1200 लोगों के पास जॉब्स हैं, इंशाल्लाह आगे देने जा रहे हैं। तो ये जो काम है ना वेज वाला, ये खासकर यूनियन का काम, हम उनके साथ। मेरा भी क्वेश्चन है जो मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, तो सर ये है कि जर्नलिज्म इज द ओनली प्रोफेशन perhaps where anyone from any discipline can join, even a retired journal, a doctor, engineer, anyone come and if he or she has connection, they may become anchor person. तो क्या मतलब उसमें ये होता है कि जो फॉर्मल ग्रेजुएट्स हमारे होते हैं, मैंने एक स्टडी भी की थी कि 2 तरह के एंकर पर्सन हैं इस वक्त। एक वो एंकर पर्सन हैं जो फॉर्मल BBA ग्रेजुएट्स हैं, यानी मैथ्स कॉम की डिग्री होल्डर, और दूसरे वो एंकर पर्सन हैं जो कि पैराशूटर्स हैं, यानी कोई और डिग्री है उनके पास लेकिन वो आगे बैठ गए हैं, चाहे MBBS की डिग्री है चाहे इंजीनियरिंग की है, तो उनके खिलाफ ज़्यादा शिकायत है जो नॉन मैथ्स कॉम ग्रेजुएट्स हैं। सर बात ये हो रही है कि वाहिद एक जर्नलिज्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें एंकर पर्सन मतलब जहाँ से मर्जी आ रहे हैं, रिटायर्ड जर्नल आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो क्या सर इसके बारे में कोई स्ट्रेटजी है, कोई जैसे एक्रेडिटेशन काउंसिल है, PEC है, पंजाब बार काउंसिल है या PMDC है, जो कि मतलब फिल्टर करते हैं और फिर उसी प्रोफेशन के लोग आते हैं, तो क्या ये फ्यूचर में कोई मैं एंकर तो मैंने देखे नहीं है, लेकिन ये तजिया का ज़्यादा तो तजिया में ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि सर्टन रूल्स जो है ना वो इस खेल के अंदर सर्टन रूल्स मौजूद नहीं हैं जो मालिक को सूट कर रहा है। जी आज मालिक को सूट कर रहा है एक रिटायर्ड जर्नल, वो अच्छा बोल रहा है, वो उसे इंडल्ज करने के लिए सर एनालिस्ट के तौर पर आप बुला सकते हैं। उसका कोई बात ये है, आपने अपनी बात में उसका जवाब दे दिया। देखिए आपने कहा कि जर्नलिज्म में जर्नल आ जाते हैं, तो जर्नलिज्म में जर्नल इसलिए आते हैं, जर्नलिज्म शुरू जर्नल से होती है बन गया था, उनकी बात आपने लगी ना। देखिए करंट जो हम कहते हैं कि ऊपर से आ गए जी, वो हम उन्हें कहते हैं फील्ड में ये प्रोफेशन के अंदर जो लोग जिनका प्रैक्टिकल जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। राइट। असल जो आपने कहा कि मैथ्स कॉम के बाद लोगों को आना चाहिए, वह ये है कि ये सदर साहब को पता है यहाँ पे सदर कितने यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट था जो मीडिंग था, मीडिंग में और आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी कोई गुंजाइश नहीं थी, ना इतने ज़्यादा स्टूडेंट थे, ना इतना कॉम्पिटिशन था। वह ये कि जब एक अचानक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का फ्लड है जब मुशर्रफ के दौर में, उस फ्लड की वजह से डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ी कि उसके अंदर जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उसकी कमी हो गई, बहुत थोड़ी तादाद में, और वो मेजॉरिटी लोग अखबारात से जो है ना वो शिफ्ट हो गए TV में, फिर अखबारात में जो है वो बहुत गैप आ गया। उस गैप में बहुत सारे लोग लेफ्ट राइट से भी जो है वो बीच में आ गए और वो वहाँ पे जो है वो अपने पंजे गार्डन में कामयाब हो गए। और खासतौर पर वो लोग थे जो प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट किए, जिन्होंने कभी जर्नलिज्म की नहीं हुई थी, और आज भी वही है जो आपको देखते हैं वो कंट्रोवर्शियल भी हुए रहते हैं, और उन्हीं के जो है ना वो प्रोग्राम में वो उनके जो बाइसेस हैं वो आपको नुमाइंद नजर आते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है नहीं, उनकी राय कभी भी जो है वो उनकी तादाद भी बहुत कम है। जनरलदारी जो है वो आपको नजर नहीं आती। वो ऐसी बड़ी जैसे हम अभी स्टूडेंट हैं जर्नलिज्म के और स्पेसिफिकली हमारा प्रोग्राम है डेवलपमेंट जर्नलिज्म, तो आपके ख्याल में हमें ऐसा भी प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली क्या करना चाहिए कि जैसे सर फवाद चौधरी ने कहा था उनको आंसर करने के लिए, हम खुद को पॉलिश करने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऐसी बात हो ही ना, या जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल आ रहा है उसको हम किस तरह से फ्रेशर्स कवर कर सकते हैं। अच्छे जर्नलिज्म के लिए तो स्कोप ही स्कोप है, उसके लिए गुंजाइश मौजूद है, हम वक्त मौजूद है। आप मेहनत करें, आप स्टडी करें। देखें जो एक हमारे यहाँ जो कमी पाई जाती है वो ये है कि जर्नलिज्म के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है उस तरह से जिस तरह होनी चाहिए। तो जो इसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसका बहुत स्कोप ऑल द टाइम मौजूद है। आपके पास अगर अच्छी स्टोरी है, आपके पास एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, तो वो अपनी जगह बनाती ही बनाती है।
آپ اس کے اندر جب محنت کرتے ہیں تو وہ کچھ عرصہ تو ظاہر ہے آپ کو انٹروڈیوس اپنے آپ کو کروانے میں وقت لگتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ اس میں نمایاں ہو جاتے ہیں. دیکھیں جرنلزم کیا ہے، جرنلزم ایک چیز ایسی ہے کہ آپ ڈسپلے پہ آ جاتے ہیں. آپ ٹی وی پہ کر رہے ہیں تو اسکرین پہ آ جائیں گے، آپ اخبار میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی خبر پڑھنے کو مل جائے گی. ٹھیک ہے نا، چھپ نہیں سکتے آپ. تو اس میں آپ جتنا زیادہ محنت کریں گے جرنلزم میں، اتنا ہی آپ کا آگے چانس، برائٹ چانسز آپ کے موجود ہیں. بہت ویسے یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں پریس کلب کا، لاہور پریس کلب کا خاص طور پر کردار جو ہے نا وہ اس سے بڑھ کر رہا ہے، کلبس سے بڑھ کر رہا ہے. کلب تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈیفینیشن کلب یہ ہے کہ آپ چائے پینے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ کلب نے اپنا جو ایک ڈٹرمنڈ رول ہے اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ کام کیا. اور پریس کلب کا رول جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ جو ورکرز کی، کارکنوں کے رائٹس ہیں جس کی آپ نے بات کی، نہ صرف اس کے لیے، بلکہ جو میڈیا ہاؤسز کے اوپر جو وقتاً فوقتاً حکومت نے جو کارروائیاں کی، پابندیاں لگائیں، بند کیے، ان کے حوالے سے پریس کلب باقاعدہ، لاہور پریس کلب باقاعدہ ایک مورچے کی شکل اس نے کام کیا اور یہاں پر کیمپ لگے ہیں اور ہم نے بڑا ٹھیک ٹھاک احتجاج ہمیشہ یہاں سے جو ہے وہ لانچ کیا ہے. تو یہ ایک لاہور پریس کلب کا ایک، میں اگین کہوں گا کہ لاہور پریس کلب کا، کراچی پریس کلب کا، یہ 2-3 پریس کلب ایسے ہیں، اور اب اسلام آباد پریس کلب بھی اس حوالے سے ایکٹیو ہوا ہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری کا رول رہا ہے آزادی صحافت کے حوالے سے. اچھا 2-3 گھنٹے اخبار پڑھے ہوتے ہیں، اس کو میٹر پتہ آج کل ہے کیا معاملہ، وہ اتنے سوال وہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے یار اتنے سوال، وہ سوال پہ سوال کر رہی ہوتی ہے. ان میں بڑی پوٹینشیل ہے لڑکیوں میں، تو نہیں پڑھتے ان کا پتہ چلتا ہے، ان کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے. اس کو کہتا ہے کاٹ، اس کو پیچھے سے کیا رہتا ہے پھر سر یار چھوڑ دو بس کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. تو لڑکیوں کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایسے ہی بالکل لڑکی کے لیے اتنا اچھا طریقہ ہے، لیکن ڈپینڈنٹ جب ہو جاتی ہے بیچاری پھر وہ ان کے لیے معاملہ خراب ہوتا ہے. لیکن فکر نہ کریں، یہ جو ڈگری ملنی ہے نا اس کو صندوق میں نہیں رکھنا، کام کرنا ہے اس کے لیے. ڈگری کو بالکل وہ آپ نے وہ فریم کرا کے صندوق میں ڈالنا نہ، آپ نے کام کرنا ہے. آپ ماسٹرس یہاں سے الحمدللہ کر کے جائیں گے، اور اس ماسٹرس کی ڈگری کو، ماں باپ کے پیسے کو ایسے ضائع نہیں کرنا. یہ بچیوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں جو فیمیل رپورٹرز جو ہیں وہ نہیں ملتی اچھی، اور آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر رپورٹنگ کرنی ہے، رپورٹنگ کی طرف جائیں. آپ پالیٹکس پڑھیں، آپ کامرس پڑھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لیڈی رپورٹر ہے اس نے جا کے مینا بازار کے فیشن شو ہی کور کرنا ہے یا خواتین کے ایشوز وہی کرنے ہیں. آپ اچھی پولیٹیکل رپورٹر بن سکتے ہیں، بہت اسکوپ ہے، نہیں مل رہی رپورٹرز اچھی. آپ اچھی اکنامک رپورٹر بن سکتی ہیں، اسپورٹس رپورٹر بن سکتی ہیں. آپ پڑھیں، آپ کے لیے بہت اسکوپ ہے.